Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Discussion of physics, second year, और चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 123. क्वेश्चन नंबर 123. If n number of capacitor each of capacitance C are connected in parallel to the voltage source V, then the energy stored in the combination of capacitor. जब हम डिफरेंट n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट करते और हर एक की वैल्यू C है C और पैरेलल में कनेक्ट करते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है NC. जब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है NC. नाउ अगर हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट करें पैरेलल में तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस NC हो गई और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है 1/2 CV². अगर हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट करें तो फिर उसके लिए एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला हो जाएगा 1/2 NCV². दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड in capacitor NCV². If n number of capacitor are connected in parallel, then the equivalent capacitance increases to NC and the energy stored in the combination equals to 1/2 NCV². That is the energy stored in the combination of capacitor, and that is the correct option is option D. Option D. Now 124. A capacitor fully charged in a minute. If both the resistance and capacitor increases by 100%, the new time constant will be what? A capacitor fully charged in a minute. ये 123. अब now 124. A capacitor fully charged in a minute. It means कि capacitor fully charged in a minute and every capacitor fully charged in 5 time constant. 5 RC. Every capacitor fully charged in 5 time constant. हर एक capacitor 5 time constant में charge होता है. तो fully charge के लिए कितना टाइम उसने लिया? 60 सेकंड. 1 मिनट 60 सेकंड. नाउ एक टाइम कांस्टेंट कितना हुआ? इसको भी 5 पे डिवाइड करें, इसको भी 5 पे. एक टाइम कांस्टेंट हुआ 12 सेकंड. 5 टाइम कांस्टेंट 60 सेकंड, एक टाइम कांस्टेंट हुआ 12 सेकंड का. और टाइम कांस्टेंट बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C. नाउ इफ R and C is 12 second, R and C the product of resistance and capacitance equals to the time constant, and one time constant equals to 12 second. Now increases R 100% and C 100%. 100% increase mean double. Increases the value of both double. Increases the value of both to double. 100% increase mean double. Now the new time constant equals to 2R and 2C. So it gave us 2 2s are 4. The new time constant increases by 4 times. The initial time constant is 12 second. The new time constant 4 multiplied 12 second, you will get 48 second. So the new time constant increases to 48 second, and that is option A. Now 125. If the charge on the capacitor become double, the energy stored in the capacitor become 4 times, and that is question number 125. 125. If the charge on the capacitor become double, the energy stored in the capacitor become 4 times, and that is option A. Why 4 times? Because we know that the energy stored in capacitor 1/2 Q² divided by C. Question में given है charge on the capacitor become double. So when charge on the capacitor become double, energy is directly proportional to square of the charge. Now when the charge become double, energy become 4 times, because energy is directly proportional to square of the charge. अगर चार्ज को डबल करते हैं तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे और 2 का स्क्वायर 4 है, तो एनर्जी कैपेसिटर में बढ़ जाएगी 4 टाइम. सो ऑप्शन A is the correct option. Now 126. When the voltage across the resistance become double, the ratio of current to voltage become what? Very important question. When the voltage across the resistance become double, what will be the effect of current to voltage ratio? Now we know that according to Ohm's law, we know that current is directly proportional to voltage, and the ratio of current to resistance, the ratio of current to resistance equals to conductance. Current to voltage, the ratio of current to voltage equals to conductance. Now अगर हम वोल्टेज को डबल करें तो रेशो ऑफ करंट एंड वोल्टेज क्या होगी? तो अगर हम वोल्टेज को डबल करें तो करंट डबल हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट व्हेन द वोल्टेज बिकम डबल, करंट बिकम डबल. वोल्टेज को डबल करने से करंट डबल हो जाता है.
इसलिए ये जो रेशो है ये कंडक्टेंस दे रिमेन कांस्टेंट. सो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस the resistance become double, the ratio of current to voltage remains same, and the ratio of voltage to current will also same. The ratio of voltage to current give us resistance. This ratio remains same. This ratio also remain constant. When the voltage double, only current double. This ratio remain constant. इसमें आ रहे option C. Now 127. Which statement is correct? 127. Which statement is correct? Resistance depends on voltage. No. Resistance does not depends on voltage. Resistance depends on the physical state of resistor and temperature and the material, nature of material. Current does not depends on the resistance. गलत. Current depends on the resistance. Third है voltage depends on the current. No. And current depends on voltage. Yes. According to Ohm's law, current depends on voltage. It is 126 and that is 127. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अगर हम वोल्टेज को ज्यादा करेंगे तो करंट बढ़ेगा. सो इसमें आ रहे ऑप्शन डी. 127 ऑप्शन डी लास्ट वन. 128 an electron move in a circular conductor with voltage V produces how much current? The radius of the circular path is R. Now 128 में आ रहे कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम सर्कुलर कंडक्टर में मूव करें, सर्कुलर कंडक्टर में मूव करे तो ये इलेक्ट्रॉन कितना करंट प्रोड्यूस करेगा. द करंट प्रोड्यूसेस बाय द इलेक्ट्रॉन 128. अब सुन ले, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर कंडक्टर में मूव कर रहे तो करंट के लिए फार्मूला है एन ई डिवाइडेड बाई टी, आल्सो क्यू बाई टी, बट क्यू बराबर है एन ई के. अगर हम इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर कंडक्टर में मूव करें, एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी जगह 1 और ई बाई टी. और हमें पता है इस इज इक्वल टू वी टी एंड टी इज इक्वल टू एस बाई वी. टी इज इक्वल टू एस बाई वी. आप टी की जगह क्या पुट करें? टी की जगह आप लोग पुट करें एस बाई वी. सो नाउ आई इज इक्वल टू ई और टी की जगह पुट करें एस बाई वी. एस बाई वी. नाउ ये हो जाएगा ई वी डिवाइडेड बाई एस, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एस. और सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस होता है? 2 पाई आर. आप इसकी जगह क्या पुट करें? 2 पाई आर. सो यू विल गेट 2v डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. दैट इज द करंट प्रोड्यूसेस इन द कंडक्टर हैविंग सर्कुलर शेप. तो इसमें आ रहे ऑप्शन ए. 128 में आ रहे ऑप्शन ए. नाउ 129 में क्या आ रहे? 129. इफ x is the distance from the charge particle and A is the electric field at that point due to the charge particle Q, then the electric potential in term of electric field. Electric potential in term of electric field, we know that electric potential बराबर होता है electric field multiply R. Electric potential equals to electric field multiply R. So now electric field की वैल्यू गिवन है A, electric field की वैल्यू गिवन है A और distance की वैल्यू गिवन है x. So this is if this is electric field and there's a distance from the charge particle. So voltage in term of electric field equals to A into x, because voltage or potential equals to electric field multiply R. So that is the answer and the correct option is option A. 129. Now 130. If a wire of resistance R is stretched to 3 times of its original length, keeping the volume constant, the new resistance will be what? Now, अगर हम वायर को ये 128 में 129 में था और अभी है 130, अभी है 130 में बता रहे कि अगर हम एक वायर है उसका रेजिस्टेंस है R, इसको हम स्ट्रेच करें, स्ट्रेच इस तरह की इसकी लेंथ को बाय स्ट्रेचनेस हम बढ़ा दे और इसकी लेंथ को 3 टाइम बढ़ा दे. तो इसके लिए फॉर्मूला है R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, where n square is the number that you stretch the wire, how much time the length of the wire increases. N is how much time the length of the wire increases by stretchness. इनकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू ये है कि आपने वायर को, कंडक्टर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ कितना टाइम बढ़ाया, इन रिप्रेजेंट दैट. तो हमने वायर को स्ट्रेच किया और इसका लेंथ 3 टाइम बढ़ा. जब लेंथ 3 टाइम बढ़ा तो आप इनकी जगह क्या पुट करें? 3 पुट करें. 3 square into R. The new resistance become 9R.
दैट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 130 में आ रहे ऑप्शन ए। नाउ 131 की हम बात करें, MCQs number 131. The EMF of the cell is 10 volt and the internal resistance of the cell is 500 milliohm and the current is 500 milliampere. The internal resistance of the cell is 200 milliohm. What is the potential difference of the cell? We know that 131 में आ रहे 131. We know that potential difference equals to EMF minus IR. That is the equation for potential difference. To find out the potential difference, potential difference मालूम करने के लिए इक्वेशन है EMF minus IR. अब हमें सेल का EMF गिवन है 10 वोल्ट माइनस करंट गिवन है 500 मिली एम्पेयर, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 200 मिली ओहम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। नाउ अब सुन ले, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 500 मिली एम्पेयर, तो आप इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर। इधर आप लिख सकते हैं 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ओहम। मिली बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 के। नाउ 10 वोल्ट इक्वल्स माइनस 500 डिवाइड बाई 1000, 10 रेज़ टू द पावर 3 नीचे आ जाए तो ये 1000 बन जाती है। 500 डिवाइड बाई 1000 0.5 एम्पेयर और 200 डिवाइडेड बाई 1000 10 raised to the power minus 3 mean 1 over 1000. 200 divided by 1000 0.2 ohm. Now अब सुन ले, 10 volt minus 0.5 multiply 0.2 equals to 0.1. 10 volt minus 0.1 equals to 9.9 volt and the correct option in 131 equals to option A. Option A is the correct option. Now 132. 132. If 6 into 10 raised to the power 3 coulomb charge enter and 6 into 10 raised to the power 3 coulomb charge leave a conductor in 5 minutes, then which statement is correct? The current in the conductor is 0? No. The net charge is 0? No. The potential difference at the end is 0? No. And the current in the conductor is not 0. That is the correct option because आपको बता रहे 132 में बता रहा है कि अगर 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में एंट्री करे और 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से निकले, लीव हो जाए, तो फिर इतना चार्ज तो कंडक्टर में पास भी हुआ है ना। ये तो करंट के लिए इक्वेशन ही है, करंट का कंसेप्ट ही है कि चार्ज एंट्री और चार्ज लिविंग होगा और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इस कंसेप्ट को ना लेके इसको मैं प्लस लूँ तो इसको माइनस लूंगा, नो, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए करंट जरूर होगा और करंट की वैल्यू होगी Q बाई T। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द करंट इन द कंडक्टर इज नॉट 0, ऑप्शन डी। 133. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ कंडक्ट चार्जेस at 4 centimeter from the sheet is 30 Newton per coulomb. What is the electric field at 8 centimeter? Question 133 में आया है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस से, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उससे 4 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है 30। इनफाइनाइट शीट ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे है 4 सेंटीमीटर अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड है 30 न्यूटन पर कूलम, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ 8 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जब हम डिस्टेंस को डबल करेंगे 8 सेंटीमीटर करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट शीट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए 4 सेंटीमीटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन पर कूलम है, तो 8 सेंटीमीटर पे भी यही होगा। एंड द आंसर, द करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। नाउ 134. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्ड, नो। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्ड, ऑप्शन ए में लिखा है नो। 2 में लिखा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ईच चार्ज एक्सपीरियंस सेम फोर्स, ये भी गलत है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े चार्ज पे बड़ा फोर्स लगता है और कम चार्ज पे कम फोर्स होता है। और सी में लिखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज है 0 फोर्स, नो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर फोर्स होता है। एंड द लास्ट वन, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइंस आर पैरेलल, यस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्वेश्चन नंबर है
134, ये था 133 और ये है 134। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? जिसके लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो और उसमें ना गैप बढ़े और ना गैप कम हो जाए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 135 को देख ले। 135 में लिखा है 135, इसमें आ रहे 135 में द डायमीटर ऑफ द conductor 135, the diameter ratio of the two conductor made from the same material is 2:3, the ratio of their conductance। सुन ले, 134 में 135 में है, ये है 135, the diameter ratio of the two conductors is 2:3, दो कंडक्टर्स की डायमीटर रेशो है 2:3। अब इसकी कंडक्टेंस की रेशो क्या होगी? तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड विद जी and it is directly proportional to square of diameter। now diameter की क्या रेशो है? diameter की रेशो गिवन है 2:3, इसका स्क्वायर ले तो 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, तो कंडक्टेंस की रेशो भी यही हो जाएगी 4:9। द रेशो ऑफ कंडक्टेंस डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर। तो उसमें आ रहे 2:3 डायमीटर की रेशो है, तो डायमीटर की स्क्वायर की रेशो 4:9, इसका स्क्वायर ले और कंडक्टेंस की रेशो भी हो गई 4:9। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 135। ऑप्शन ए 136, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विद इट्स मटेरियल। डी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को कहते हैं और रेजिस्टिविटी फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया, डायमीटर, रेडियस, इस पर डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को कहते हैं और रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 137, in the series combination of two resistors, if I is the current flowing through the circuit and V is the applied potential difference, and the potential difference across the resistance is in the ratio of 2:3, what will be the ratio of the resistance? Option A। किस तरह? सुन ले, आपको बता रहे 136 में बता रहे कि दो रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में कनेक्ट है, ये R1 और ये R2, ये सीरीज में कनेक्ट है और उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सीरीज में, दोनों रेजिस्टेंस में, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सब में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज में रेजिस्टर्स में वोल्टेज डिवाइड होता है और सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगे हो तो करंट रिमेन सेम। अब वोल्टेज डिवाइड होगा और वोल्टेज किस रेट से डिवाइड हो रहा है? इधर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है 2:3, इसमें 2 वोल्टेज जा रहे 2 वोल्ट, सपोज इसमें 3 वोल्ट जा रहे, इसमें 2 वोल्ट जा रहे, इसमें 3 वोल्ट जा रहे, वोल्टेज की रेशो क्या है? 2:3। तो इनकी रेजिस्टेंस की रेशो क्या होगी? वो भी 2:3 ही होगी, 2:3। वाई? बिकॉज इन सीरीज किस रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज जाएगा? जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और उस रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज जाता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। वोल्टेज ड्रॉप उधर ज्यादा होता है जिधर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। तो वोल्टेज 2:3, रेजिस्टेंस मस्ट बी 2:3 एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 138, क्वेश्चन नंबर 138 में आ रहे द कंडक्टिविटी ऑफ सुपरकंडक्टर इज इनफाइनाइट। ऑप्शन ए 138 में आ रहे ऑप्शन ए सुपरकंडक्टर की कंडक्टिविटी, बिकॉज सुपरकंडक्टर हैव जीरो रेजिस्टेंस, so it have infinite conductance and it have infinite resistivity। Option A 139, at ordinary temperature an increase in temperature increase the conductivity of semiconductor, because conductivity is inversely proportional to temperature। Conductivity is inversely proportional to temperature for what? Conductivity is inversely proportional to temperature for conductors and conductivity is directly proportional to temperature for semiconductors। semiconductors का टेम्परेचर बढ़ाओ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो
हमने टेम्परेचर बढ़ाया और कंडक्टिविटी बढ़ी, तो ये कौन सा मटेरियल है? ये सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन बी। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 140 में लिखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल इज इनफाइनाइट 140, ये है 139 140। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, मेटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन रिलेटिव परमिटिविटी, मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी होती है इनफाइनाइट, तो इसमें आ रहे ऑप्शन डी। नाउ 141 में है क्वेश्चन नंबर 141, चार्ज Q is divided into two parts which are then kept with some distance apart from each other. The force between the charges will be maximum in which case? So the force will be maximum when the product of the charges is maximum. According to Ohm's law, the force between two charges will be maximum. 141. According to Ohm's law, 141 में force is directly proportional to the product of charge Q1 and Q2. अब आपने एक चार्ज को दो चार्जेस में डिवाइड किया और उसके डिफरेंट पेयर्स गिवन है 141 में। ऑप्शन ए में है कि किधर इन दो चार्जेस के बीच फोर्स मैक्सिमम होगा, जिधर चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा हो। आप ऑप्शन ए में देख ले तो आपको गिवन है Q/2 और Q/2, तो Q/2 और Q/2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? Q²/4। आप ऑप्शन बी में देख ले तो उसमें आ रहा है Q/4 और 3Q/4। आप इसका प्रोडक्ट ले तो इससे आ रहे 3Q²/16, और इस तरह सी में भी प्रोडक्ट आ रहे 2Q²/9 और डी में आ रहे Q²/16। किधर प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे? चार्जेस का इधर ज्यादा आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जिधर चार्जेस की प्रोडक्ट ज्यादा उधर फोर्स मैक्सिमम। 142, एन इलेक्ट्रिक चार्ज रिजाइडिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस व्हाट? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर चार्जेस रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इधर लिखा है कि चार्ज के इर्द गिर्द कौन सा फील्ड होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ऑप्शन ए। 143, a metallic particle having no net charge is placed near the finite metal plate carrying positive charge. एक मेटेलिक पार्टिकल है 142 में और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सपोज मैं इस तरह ले को एक स्फेयर है, इसके ऊपर नेट चार्ज नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो नेट चार्ज का मतलब ये कि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, इस स्फेयर के ऊपर नेट चार्ज नहीं है। अब आपने इसको एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट के करीब रखा तो इस मेटल स्फेयर के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी। इस मेटल स्फेयर को ये प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो ऑप्शन ए टुवर्ड द प्लेट, इस पे फोर्स होगा टुवर्ड द प्लेट। किस तरह? सुन ले, ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड इट इज न्यूट्रल स्फेयर। न्यूट्रल स्फेयर उसको कहते हैं जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हो। नाउ अब ये पॉजिटिव प्लेट है, इस स्फेयर के नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस स्फेयर के पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट की वजह से जो है ना, इस प्लेट की पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो जाएंगे, तो स्फेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पोल्स बन जाएंगे स्फेयर में, स्फेयर के अंदर पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ, नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए ये स्फेयर मूव करेगी या स्फेयर टुवर्ड द प्लेट जो है ना, इसके ऊपर फोर्स होगा। तो फोर्स किस तरफ होगा? टुवर्ड द प्लेट। ऑप्शन इसमें आ रहे 142 में आ रहे ऑप्शन जो है ना 143 में ऑप्शन आ रहे टुवर्ड द प्लेट, ये है 143, ठीक, इसमें आ रहे टुवर्ड द प्लेट। 142 में आ रहे ऑप्शन ए, 143 में आ रहे ऑप्शन ए टुवर्ड द प्लेट, ये 143 है। नाउ 144, 4 charges 2 coulomb minus 3 coulomb minus 4 coulomb plus 5 coulomb respectively placed at the corners of the square. Which of the following is correct? सुन ले, इधर जो चार्जेस गिवन है ये है 2 कूलम माइनस 3 कूलम माइनस 4 कूलम और 5 कूलम। अब आप सोच ले, सुन ले, इधर जो है ना प्लस 2 कूलम चार्ज, उधर प्लस 5 कूलम चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ प्लस 7 कूलम, प्लस 7 कूलम। सिमिलरली आप नेगेटिव चार्ज को देखें, माइनस 3 कूलम माइनस 4 कूलम, नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? माइनस 7 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच स्ट्रांग होता है। अगर एक तरफ हम +7 कूलम कर ले, दूसरी तरफ -7 कूलम कर ले, तो देयर इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या इक्वेशन है? V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए नेट चार्ज चाहिए, इधर +7 कूलम -7 कूलम, नेट चार्ज कितना है? 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। कौन सा ऑप्शन 144 में ठीक है? ऑप्शन 144 में ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आ रहे ऑप्शन बी 144 में। नाउ 145, अब हम पढ़ते हैं 145। क्वेश्चन नंबर 145 सुन ले। इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी डिक्रीजेस। एक पॉइंट चार्ज है, इसकी सपोज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, और जब आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फ्रॉम ए सिंगल चार्ज के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। 145 में आ रहे ऑप्शन बी। नाउ अब क्वेश्चन है 146। A parallel plate capacitor is charged and by the battery and then the battery disconnected. If the plate of the capacitor is moved further, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? The electrostatic energy stored in the capacitor increases. क्यों इंक्रीज होगी? सुन ले। 146 में क्या है? 146 में बता रहे कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है कैपेसिटर का, और फिर हम इन प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी? पहले ऑप्शन में है कि चार्ज बढ़ेगा कि नहीं, चार्ज रिमेन सेम होगा। फिर एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज होगी। नो, एनर्जी इंक्रीज होगी। और 146 में आ रहे ऑप्शन डी। क्यों एनर्जी इंक्रीज होगी? सुन ले। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से दूर करेंगे, अवे ले जाएंगे, उसके लिए फोर्स चाहिए, इसके लिए वर्क चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए। टू मूव अवे ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, इसके लिए वर्क चाहिए, और वही वर्क, वही एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जब आप इन प्लेट्स को अवे ले जाएंगे, इसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी, वही एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी, तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी। और फार्मूले में ये है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल्स टू 1/2, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए इंटू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मस्ट बी इंक्रीजेज। इसमें आ रहे आपके साथ ऑप्शन डी 146। Now 147 में देख ले। 147, the value of potential at a point due to point charge is inversely proportional to the distance. Option C. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 147 में देख ले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चार्ज से जब हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, या कौन सा ऑप्शन ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 147 में देख ले। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो जब हम पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। क्यों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है के क्यू डिवाइड बाय आर। जब आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 148, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज सेल इज 5 एम्पेयर आवर। द मैक्सिमम करंट कैन बी सप्लाइड फॉर 10 आवर इज 0.5 एम्पेयर। ऑप्शन बी 148 में। 148 में आ रहे कैपेसिटी कितनी है? एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है, सपोज ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये कैपेसिटी गिवन है, सपोज ए इज द कैपेसिटी, और वो है 10 एम्पेयर आवर। 10 एम्पेयर आवर। सो नाउ व्हाट इज द करंट? तो करंट के लिए है, करंट के लिए फार्मूला है कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज बैटरी आर सेल,
तो ये है 10 एम्पेयर आवर और डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, तो ये कैंसिल और इसके लिए आ जाएगा 10/10। ये है 5 एम्पेयर आवर, ये गिवन है 5 एम्पेयर, कैपेसिटी गिवन है 5 एम्पेयर आवर की, और टाइम कितना गिवन है 10 आवर। ये कैपेसिटी 5 एम्पेयर आवर क्वेश्चन में गिवन है, ये गलती हो गई है। तो ये 5 एम्पेयर आवर है और टाइम कितना गिवन है 10 आवर, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5 एम्पेयर, दैट इज द करंट इन द सेल। तो 148 में आ रहे ऑप्शन बी। नाउ 149, द वाटर इन द डाइलेक्ट्रिक केटल begins to boil in 15 minutes after being switched on using the same main supply. Should the length of the wire increase or decrease to boil the water in 10 minutes? अब 149 में ये है कि हम वाटर को बॉयल करते हैं और वाटर बॉयल होती है 15 मिनट्स में। हीट जो है ना, हीटिंग इफेक्ट, हीट है वो बराबर है I²R और T के। अब वाटर जो है ना वो बॉयल होती है 149 में, वाटर बॉयल होती है 15 मिनट्स में, और आप चाहते हैं कि ये वाटर अभी 10 मिनट में बॉयल हो जाए, क्विकली बॉयल हो जाए, कम टाइम ले। तो अगर टाइम को आप कम करना चाहते हैं, ये है I²RT। अगर आप टाइम को कम करना चाहते हैं, पहले ये वाटर 15 मिनट्स में बॉयल हो रही थी, अभी इस वाटर को 10 मिनट में बॉयल करना है। 10 मिनट में बॉयल करने के लिए क्या करोगे, जब आप टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं कि ये कम टाइम ले, तो फिर रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वाटर क्विकली बॉयल हो जाएगी। तो जब आप टाइम को कम करना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ा दे, और रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ सकता है, आप लेंथ को बढ़ा दें। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, इसलिए आप लेंथ को इंक्रीज करें, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा और वाटर 15 मिनट्स के बजाय 10 मिनट में बॉयल हो जाएगी। इसके लिए है ऑप्शन बी, इंक्रीज। A constant voltage is supplied between the two ends of the metallic wire. If both the length and radius of the wire double, the rate of heat developed will be what? Rate of heat developed power को कहते हैं। 150 में क्या है, पावर। Rate of heat developed power को कहते हैं, rate of energy, rate of heat, ये पावर है। तो आपको बता रहे कि कांस्टेंट वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया, तो जब आपको वोल्टेज गिवन हो तो फिर पावर का फार्मूला है V² डिवाइडेड बाय R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। पावर का क्या इक्वेशन है, V² डिवाइडेड बाय R। नाउ अब देख ले, अब आपको बता रहे कि रेट ऑफ पावर क्या होगी कि हम एक वायर की लेंथ को डबल करें, रेडियस को भी डबल करें। सुन ले, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब क्या करना है, मतलब अगर हम लेंथ को डबल करें और रेडियस को भी डबल करें, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आप लेंथ को डबल करें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और आप रेडियस को भी डबल करें तो 2 का आप स्क्वायर लोगे। रेडियस डबल हुआ 2R, तो इस 2 का आप क्या लोगे, स्क्वायर लोगे। क्यों स्क्वायर लोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अगर आप रेडियस भी डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगा, 2 2s are 4। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना कम हुआ, 2 टाइम बढ़ गया, 4 टाइम कम हुआ, तो रेजिस्टेंस 2 टाइम कम हुआ। जब रेजिस्टेंस 2 टाइम कम हुआ तो पावर 2 टाइम बढ़ जाएगा। पावर को हम कहते हैं रेट ऑफ हीट। तो 149 में आ रहे, 150 में आ रहे बी डबल, 150 में क्या आ रहे, डबल, ये है 150, ये है MCQs नंबर 150 और इसमें आ रहे ऑप्शन बी डबल। नाउ 151 में देखे, 2 bulbs of power P1 and P2 are connected in series। 2 बल्ब से उनका पावर है P1 and P2, इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में पावर का वही फार्मूला है जो कैपेसिटर का है। फॉर एग्जांपल सीरीज में हम कहते हैं 1/PS इक्वल्स टू 1/P1 और 1/P2। इसको सॉल्व करें तो सीरीज में पावर का फार्मूला आते हैं P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पावर बढ़ जाता है, पावर कंजप्शन ज्यादा हो जाता है, और उसके लिए फार्मूला है P1 प्लस P2। ये पैरेलल में, ये सीरीज में। 2 बल्ब्स को सीरीज में लगाया है, इसलिए नेट पावर कंज्यूम होगा P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, ऑप्शन सी। नाउ 152, the
A conducting wire is drawn to double up its length. The final resistivity of the material will be what? एक कंडक्टर को हमने स्ट्रिच किया और उसका लेंथ हमने स्ट्रिचनेस के थ्रू डबल कर दी। रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लेंथ पे, एरिया पे, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी 152। 153, what is the largest resistance that can be obtained from 100 1 over 10 ohm resistance? इस क्वेश्चन 153 में what is the largest resistance that can be obtained, इधर 10 लिखा है, एक्चुअली 100 from 100 1 over 10 ohm resistance। तो देखिए 100 1 over 10 ohm resistance है, 100 रेजिस्टेंस है और हर एक की वैल्यू है 1 over 10 ohm। अब इससे हम मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस ले सकते हैं? इससे हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस 10 ओम ही ले सकते हैं अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट करें। क्यों? रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए फार्मूला है आर एस, इसके लिए फार्मूला है एन आर, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और एन है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो आर एस इक्वल्स टू, ये कितना रेजिस्टर है? इस क्वेश्चन में 10 गिवन है, ये बाय मिस्टेक 10 है लेकिन एक्चुअली ये 100 है, हमने ठीक करवाया था। तो ये है 100 और हर एक की वैल्यू क्या है? 1 over 10, तो इससे आएगा 10 ओहम। लार्जेस्ट रेजिस्टेंस आप इससे ले सकते हैं 10 ओहम, ऑप्शन डी। नाउ 154, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ सिमिलर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट इज नोन। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड? 153 हुआ। 154 में आपसे ये कह रहे, 154 में ये कह रहे कि अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो तो और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। 154 में सुन ले, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह मालूम करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। आर है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नोन हो और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट नोन हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें आ रहे, ठीक, कि आपके पास हो सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। नाउ 155, ए कैपेसिटर विच हैव कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड, इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? स्टोर्ड 1 कूलम चार्ज एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ऑप्शन बी। 155 में कह रहे, ये 154 है। 155 में कह रहे कि 1 फैराड कैपेसिटर किसे कहते हैं? जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो। वी नो दैट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू बाई वी। 1 फैराड कैपेसिटेंस कितना होता है? अगर वो 1 कूलम चार्ज स्टोर करे और हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें 1 वोल्ट, एक कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज स्टोर करे और हम इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें तो फिर उसकी कैपेसिटी होगी 1 फैराड। तो इसमें आ रहा है 155 में आ रहा है ऑप्शन बी। एंड 156, 3 bulbs rating 40 watt, 60 watt and 100 watt designed to work on 220 volt. Which bulb will burn most brightly if they are connected in series? Option A। सुन ले, 156 में कह रहे कि 3 बल्ब से 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट, और इन तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज में। कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा? तो इसके लिए फार्मूला है, जब ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में, तो सीरीज में फार्मूला है ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ द बल्ब व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। जब बल्ब्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा ज्यादा ब्राइटर होगा? जिसका पावर कम उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? 40 वाट, क्योंकि इसका पावर कम है। और जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ले, हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इन बल्ब्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो कौन सी बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी? 100 वाट की, जिसका पावर ज्यादा हो, अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करें। अभी तो सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? जिसका पावर कम होगा, एंड दैट इज 40 वाट।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 156 में था। अब हम पढ़ेंगे 157। 157 एमसीक्यूज नंबर 157 को देख ले। एमसीक्यूज नंबर 157 जो है ना, ये पेज टर्न ऑन करे। 157, देयर आर टू चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन देम। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस, जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे। कूलम ला ओबे न्यूटन थर्ड ला ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें आ रहे ऑप्शन बी 157 में। किस तरह देखे, आपको बता रहे एक चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है +8 माइक्रोकूलम। ये 3 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम पे अगर एफ फोर्स लगा रहा है तो 8 माइक्रोकूलम भी 3 माइक्रोकूलम पे एफ फोर्स ही लगाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कूलम फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। अगर Q1 Q2 पे एफ फोर्स लगा रहे तो Q2 भी Q1 पे एफ ही लगाएगा, न ज्यादा लगाएगा न कम, क्योंकि ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे ये इन फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। ऑप्शन बी 1:1। ये 3 कूलम 8 कूलम पे जितना फोर्स लगाएगा 8 कूलम भी 3 पे उतना ही लगाएगा। और करेक्ट ऑप्शन इज 1:1, ऑप्शन बी। 158, व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी विथ चार्ज बाय रबिंग। आप एक बॉडी को चार्ज करें, आप एक बॉडी को रब करें, रबिंग से सपोज उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक बॉडी को आप रब करें, उसके ऊपर चार्ज लाए, पॉजिटिव चार्ज लाए या नेगेटिव, उसकी वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका वेट रिमेन सेम होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हम एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं करते। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ये बॉडी के मास या एटम के मास में इन्वॉल्व नहीं होता। अब हम किसी बॉडी को चार्ज करते तो चार्ज का मतलब उसने या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और या इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो भी उसके वेट पे फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास को इफेक्ट नहीं करता। एटॉमिक मास बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, उसकी वेट या मास में कोई फर्क नहीं आएगा एंड द वेट विल रिमेन सेम। ऑप्शन डी। 159, the ratio of the force between two charges in vacuum at certain distance to the ratio of the Coulomb force between these charges of relative permittivity ER। तो इसके लिए क्या है रेशो? हम पढ़ते 159 में कि आप कूलम फोर्स की रेशो मालूम करें जब कूलम फोर्स वैक्यूम में हो, और फिर रेशो मालूम करें जब कूलम फोर्स मीडियम में हो। इसमें आपको बता रहे ये था 157, 158 भी हुआ। 158 में क्या बता रहे कि आप किसी बॉडी पे चार्ज लाए तो उसकी वेट पे क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। ये 157 था, ये 158। नाउ अब 159 पढ़ते। 159 में क्या है? 159 में है कि द रेशियो ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द कूलम फोर्स इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। एफ वैक्यूम टू एफ मीडियम बता रहे। कूलम फोर्स इन वैक्यूम टू कूलम फोर्स इन मीडियम, इसकी रेशो मालूम करनी है। हाँ, ये आ गई कूलम फोर्स इन वैक्यूम, ये तो अपनी जगह पे आ गई कूलम फोर्स इन वैक्यूम। और कूलम फोर्स इन मीडियम बराबर है कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये कूलम फोर्स इन द मीडियम है। नाउ अब ये कैंसिल और इसके लिए आया 1:1 ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्या करोगे? इसको भी रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करो, इसको भी, इससे आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी रेशो 1। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वैक्यूम में कूलम फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी टाइम ज्यादा होगा, किससे? मीडियम से। और मीडियम में कूलम फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी टाइम कम होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 160, कंडक्टिविटी इज व्हाट? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। Conductivity is the reciprocal of resistivity and its unit is ohm inverse meter inverse। Unit of conductivity, conductivity का unit है ohm inverse meter inverse, ये उसका unit है।
हाँ 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 हाँ, तो होता वो लगा कर दीजिए कि वो लगा हमारा। हाँ हाँ हाँ, वो कहने घर में डेरा था। हाँ दगा पके ना रात लो। हाँ सा। हाँ तो देखे 160 में आ रहे कंडक्टिविटी इज द सेम एज रेजिस्टिविटी, ये ठीक नहीं है ऑप्शन ए। 160 में ऑप्शन ए ठीक नहीं है, वो ऑप्शन बी में है एक्सप्रेस इन ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस नॉट कंडक्टिविटी। एंड ऑप्शन सी में है 1 ओवर रेजिस्टेंस, ये भी ठीक नहीं है। कंडक्टिविटी एक्सप्रेस इन ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी। 160 में आ रहे ऑप्शन डी। नाउ 161, a current of 0.5 ampere exists in 60 ohm lamp, the applied potential difference will be what? वन ये होता 160 कंडक्टिविटी का ये यूनिट है। 161 में क्या है कि अगर करंट है 0.5 एम्पेयर एक लैंप में और लैंप का रेजिस्टेंस है 60 ओहम, तो फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस लैंप में? तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है आई आर। आई आर तो करंट है 0.5 और रेजिस्टेंस है 60, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 30 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 162 को देख ले, ये था 161। अब 162 को देख ले, 162 सॉल्व करते, सुन ले। 162 के लिए है, 162 के लिए है 162 देखे विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ इनकेंडेसेंट लाइट बल्ब। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो ग्राफ आपको गिवन है करंट और वोल्टेज का, ये वोल्टेज है ये करंट, और आपको जो ग्राफ गिवन है वो ऑप्शन ए में कुछ इस तरह गिवन है, और ये ग्राफ बल्ब के लिए ठीक है। क्यों? बल्ब में इनिशियली ओम्स लॉ ओबे होती है, जितना हम करंट वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना करंट बढ़ता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद बल्ब जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है, तो फिर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इनिशियली बल्ब में ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन बाद में टेम्परेचर ऑफ द बल्ब बढ़ जाता है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और उससे करंट में डिक्रीज आ जाती है, तो बाद में जो है ना ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और फिर वोल्टेज बढ़ता है लेकिन करंट बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन ए ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। 163 में देख ले, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 1 is twice to the resistance of resistor 2. The two are connected in series and potential difference is maintained across the combination. Which statement is correct? The current in 1 is twice, the current in resistance 2 is twice, the potential difference is 1 is twice then potential difference in 2. 163 में आपको बता रहे कि दो रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। किस में? सीरीज में। और रेजिस्टर 1 है ये, और ये रेजिस्टर 2 है। रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू रेजिस्टेंस 2 के डबल है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 5 है। अब देखें, अब सीरीज में जब ये दोनों कनेक्ट है ना, तो सीरीज में करंट दोनों रेजिस्टर में सेम होगा। सीरीज में करंट सेम होता है, करंट डिवाइड नहीं होता, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और किस रेजिस्टर में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा? जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो। तो R1 डबल देन R2, इसलिए वोल्टेज भी R1 में डबल होगा कंपेयर टू वोल्टेज इन R2। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेंशियल डिफरेंस in resistor 1 is twice than the potential difference in resistor 2 because सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज उस रेजिस्टेंस में ज्यादा होता है, ज्यादा ड्रॉप होता है, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। 164, a battery with EMF of 24 volt connected with 6 ohm resistor, as a result current 3 ampere is produces, the terminal potential difference will be what? इसमें है 164 करना है। 164 को देखें, इसमें थोड़ा लॉजिक भी है और मैथमेटिक्स भी है। आपको बता रहे कि एक सेल का, एक बैटरी का ईएमएफ है 24 वोल्ट, और सर्किट का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है
6 ओम। और कितना करंट प्रोड्यूस होता है? 3 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होता है। और आपने क्या मालूम करना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे। पहले हम जो है ना एक इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला है करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी क्या करना है? हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है। आर प्लस आर इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट। अब ईएमएफ कितना है सेल का? 24 वोल्ट। और करंट कितना है? 3 एम्पेयर। तो इससे क्या आ जाएगा? 24 डिवाइड बाई 3, 8 ओहम। तो आर प्लस आर से आया 8 और स्मॉल आर आया रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसके लिए वैल्यू आ गई 8 माइनस कैपिटल आर, और कैपिटल आर गिवन है कितना है? 6 ओहम। इसके लिए आया स्मॉल आर आ जाएगा 8 माइनस 6, 2 ओहम। स्मॉल रेजिस्टेंस मालूम हुआ। स्मॉल रेजिस्टेंस मीन रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये मालूम हो गई। अब क्या मालूम करना है? अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, और उसके लिए फार्मूला है ईएमएफ माइनस आई आर। तो ईएमएफ कितना है? 24 वोल्ट, करंट है 3 एम्पेयर और स्मॉल आर है 2 ओहम। 24 वोल्ट माइनस 3 मल्टीप्लाई टू 6, 24 माइनस 6, 18 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ईएमएफ 24 था, पोटेंशियल डिफरेंस आया 18। 165 में देख ले। 165 में बता रहे कैलकुलेट द रेट एट विच द एनर्जी ट्रांसफर बाय 220 वोल्ट मेन सप्लाई विच प्रोवाइडेड द करंट ऑफ 0.1। आपको बता रहे रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी मालूम करे, और आपको वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है। रेट ऑफ एनर्जी पावर को कहते हैं। रेट ऑफ एनर्जी पावर को कहते हैं। अब पावर कितना है? पावर कितना होता है जब आपको वोल्टेज और करंट गिवन होता है? रेट ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम है पावर, और पावर बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। कितना करंट पास हो रहा है इसमें? करंट इसमें पास हो रहा है 0.1, और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। 0.1 मल्टीप्लाई 220 वोल्ट, यू विल गेट 22 वाट। This 22 watt is called rate of energy, and the second name is power. Option B is the correct option. Now, 166. A torch is rated 2.2 volt, 0.25 ampere. Calculate the charge passing in the torch in 1 second and the energy transfer by the passage of each coulomb charge. Energy मालूम करो, charge मालूम करो, current और voltage given है 166 में। ये 165 था। 166 में देख ले। 166 में है टार्च की जो वोल्टेज है वो है 2.2 वोल्ट, और इसमें करंट है, वोल्टेज है 2.2 वोल्ट और करंट है 0.25 एम्पेयर। अब दो चीजें मालूम करनी है, एक चार्ज मालूम करना है चार्ज, और दूसरी एनर्जी मालूम करनी है। तो चार्ज किस तरह मालूम करना है? चार्ज के लिए फार्मूला है करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो आप 2.2 को करंट मल्टीप्लाई टाइम, 2.2 ये करंट है 0.25, करंट कितना है? 0.25, और टाइम 1 सेकंड। 0.25 मल्टीप्लाई 1 सेकंड, 0.25 कूलम। चार्ज कितना हुआ? 0.25 कूलम। और एनर्जी के लिए फार्मूला है आई वी टी। एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है? आई वी टी। करंट है 0.25, वोल्टेज है 2.2 और टाइम है 1 सेकंड। इससे आ जाएगा 0.55 जूल। तो इसमें आ रहे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 167, ये था 166, अब पढ़ेंगे 167। तो इसमें आ रहे ऑप्शन डी। 166 में आ रहा है ऑप्शन डी, ठीक। 167 में देख ले। 166 में ऑप्शन डी। The work done in moving a unit positive charge from one point to another point in electric field equals to potential difference. Work done per unit charge किसके बराबर होता है? Work done per unit charge बराबर होता है potential difference के, voltage के।
بس یو څو MCQs پاتې درې څلور بس نه ما ته خو هغه نور دا لرې کوم او کنه ارجل وګم خو بس دا درې کوي مو ته دا څه پته وي چې ته بره حل خاطر مو بیرته یې سیده ګولې زه نو ماستر کې وم کنه ترځي صفان نشه خیر دی ای به په مړ اسی بس لږ وخت دې سیس داخله ها ته شروع شه ما دونه خلال ته غرمم کړي وا بس حاضر تو 167 में क्या आ रहे 167 में आ रहे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑप्शन बी नाउ 168 इसमें आ रहे ऑप्शन बी 168 में देख लें 168 में है if voltage applied to the if V is the voltage applied and across the resistance then the loss in potential energy per unit time if V is the voltage loss if V is the potential difference or voltage drop in the resistance R then the energy per unit time per power को कहते हैं और पावर के तीन इक्वेशन है IV I square R V square by R इसको कहते हैं रेट ऑफ एनर्जी दूसरा नाम इसका है पावर तीनों इक्वेशन गिवन है ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इसमें आ रहे ऑप्शन डी इसमें आ रहे लास्ट वन ऑप्शन डी नाउ 169 when the potential difference applied across the end of the uniform wire of length L, radius R and current I flow in the wire. If the same potential difference is applied to the end of another wire of same material but length 2L and radius 2R, the current will be what? सुन ले पहले जो है ना V पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया एक वायर को इस वायर का लेंथ था L और रेडियस था R नाउ और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था इसमें करंट था I अब आपने इस वायर की लेंथ को भी डबल कर दी और रेडियस को भी तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा अगर आप लेंथ को भी डबल करते हैं और रेडियस को भी डबल करते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस नाउ अगर लेंथ डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी और अगर रेडियस डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगी ओवरऑल रेजिस्टेंस 2/4 R/2 रेजिस्टेंस हाफ हो गया जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट डबल हो जाएगा बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एक वायर को आपने वी वोल्टेज दी उसका लेंथ L था रेडियस R था उसमें करंट I था फिर आपने क्या किया फिर आपने दूसरा वायर लिया उसको सेम वोल्टेज प्रोवाइड की लेकिन उसका लेंथ 2L रखा और रेडियस भी 2R तो फिर उसका रेजिस्टेंस 2 टाइम कम हो जाएगा और उसमें करंट अब हो जाएगी 2I करंट क्या हो जाएगा करंट डबल हो जाएगा क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस हाफ तो करंट डबल अब इसमें है 2I ऑप्शन ए 169 में ऑप्शन ए 170 The electrical analog of mass and electricity is inductance. Electrical analog of mass 170 में देख ले analog of mass किसे कहते हैं mass provided inertia to the body. मास का क्या रोल होता है मास का ये रोल होता है जब आप स्टेट को चेंज करोगे बॉडी के स्टेट को चेंज करोगे तो मास इनर्शिया प्रोवाइड करती है कि उसका स्टेट ना चेंज ना किया जाए आप रिस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करते हो रेजिस्टेंस करते हैं नॉट टू मूव एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्टॉप करते हैं फिर रेजिस्टेंस शो करता है नॉट टू स्टॉप जब आप बॉडी के स्टेट को चेंज करोगे वो बॉडी रेजिस्टेंस शो करेगी नॉट टू चेंज देयर स्टेट और इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में किसका एनालॉग है ये है इंडक्टेंस इंडक्टेंस भी यही प्रॉपर्टी है कि जब आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस शो देयर रेजिस्टेंस कि करंट ना बढ़े और जब आप करंट को कम करोगे फिर इंडक्टेंस अपना रेजिस्टेंस दिखाएगा कि करंट कम ना हो जाए तो करंट की चेंज को अपोज करता है कौन इंडक्टेंस इस तरह मास स्टेट की चेंज को अपोज करता है तो मास और इंडक्टेंस एक ही प्रॉपर्टी रखता है ऑप्शन सी 170 में ऑप्शन सी 171 द इक्विवेलेंट करंट व्हिच पास फ्रॉम हाई पोटेंशियल
to lower potential, it represents the moment of positive charge is conventional current. By conventional हम करंट की डायरेक्शन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक लेते हैं. By conventional, इसको conventional current कहते हैं. Actually, current flow from low potential to high potential, but conventionally we take from high potential to low potential. इसमें आ रहा है 171 में आ रहे conventional current option D. Now 172 to 171 में आ रहे option D. 172 210 raised to the power 6 electron passing through the conductor in 1 millisecond produces how much current? Option B. 172 में आ रहे option B. और 171 में आ रहे कन्वेंशनल करंट. 172 में किस तरह ऑप्शन भी आ रहे? करंट का फार्मूला है NE/T, NE/T, और दूसरा फार्मूला चार्ज बाय टाइम. अभी तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है. कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? इलेक्ट्रॉन है 2 × 10 raised to the power 6. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10 raised to the power -19. और कितने टाइम में? 1 मिली सेकंड में. 1 × 10 raised to the power -3 सेकंड. इसको सॉल्व करें 3.2 × 10 raised to the power -10. ऑप्शन ए इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 172 में ऑप्शन बी. नाउ 173 द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 172 था. अब 173 में देख ले. 173 the electric field strength at the point between two oppositely charged plates is E. If the distance between the plate reduced to half, the electric field become 2E. Option D. Q. देखें, दो पैरेलल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए फार्मूला है. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है A = V/D. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी. बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डबल. ऑप्शन डी. 174 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऑप्शन डी. 175 में है. 174 में ऑप्शन डी आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ 175 सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है और फिर 176 लास्ट. सेकंड लास्ट एमसीक्यूज को देख ले. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज E. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V. If R is the distance from the point charge, what is the electric potential at a point for the same point charge where electric field strength is E/4? एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है KQ/R². और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है KQ/R. क्वेश्चन में आपसे ये बता रहे कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो गई, 4 टाइम, तो उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कम होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 टाइम कम होगी. ये क्यों? देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कब 4 टाइम कम होगी? उसका आर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स स्क्वायर. जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो 2 का स्क्वायर है 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम. जब डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो जाती है. लेकिन जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 टाइम कम नहीं बल्कि 2 टाइम कम हो जाती है. तो किस डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 4 टाइम कम हो गई तो उसी पॉइंट पे समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 टाइम कम होगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर के साथ क्या रिलेशन है? ओनली इनवर्स. और इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स स्क्वायर. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम कम हो जाती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 टाइम कम होगा. एक का आर के साथ इनवर्स रिलेशन, एक का आर के साथ इनवर्स स्क्वायर. एंड द लास्ट वन, if the length, width and separation between the plate of the parallel plate capacitor is double, what is the capacitance? आपको बता रहे कि 176 लास्ट वन में कि आप प्लेट की लेंथ को भी डबल करें, विड्थ को भी डबल करें और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को भी डबल करें तो फिर कैपेसिटेंस का क्या होगा? तो कैपेसिटेंस हमेशा बराबर होता है, कैपेसिटेंस हमेशा बराबर होता है C = A ε0/D. कैपेसिटेंस बराबर होता है A ε0/D. नाउ अब एरिया किसके बराबर है? लेंथ मल्टीप्लाई
विड्थ, और ये एरिया की जगह मैंने लिखा, और एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब क्वेश्चन में क्या बता रहे कि आप लेंथ को भी डबल करें, विड्थ को भी डबल करें, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी डबल करें। जब हम लेंथ को डबल करते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई रिलेटिव मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस डबल होगा, अगर हम विड्थ को डबल करेंगे विड्थ को तो फिर भी कैपेसिटेंस डबल होगा, और अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस हाफ होगा। लेंथ को डबल करने से कैपेसिटेंस डबल हुआ, विड्थ को डबल करने से कैपेसिटेंस डबल हुआ, 2 2 जा 4, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को डबल करने से कैपेसिटेंस कम होता है 2 टाइम, तो ये कैंसल, and the equivalent capacitance become 2C become double। कैपेसिटेंस का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। और क्वेश्चन में लिखा है कि आप लेंथ को भी डबल करें, विड्थ को भी डबल करें, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को भी डबल करें। तो जब हम लेंथ को डबल करते हैं और विड्थ को डबल करते हैं, 2 2 जा 4, कैपेसिटेंस 4 टाइम बढ़ा, और डिस्टेंस को डबल करते हैं तो कैपेसिटेंस 2 टाइम कम हुआ, 4 टाइम लेंथ और विड्थ की वजह से बढ़ गया और 2 टाइम कम हुआ, तो 4C divided by 2 2C, the equivalent capacitance become double, and the correct option is option A। Thank you so much।